तो आइए सब ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਚੇਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਚੇਤਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਬੋਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਚੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਚੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਗੁਨਾਹ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਘੋਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਔਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਡ ਔਰ ਮਾਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਫਾਦਰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੂਬੀ, ਅਕਲ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਧਾਰ ਹੈ,
और रूह ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੇ ਔਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਇਆ ਰਹਿਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰਚੇਤਾ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਨਵੀਨਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਅਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 20 तो 20 ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੇ ਦੁਆ ਜਦ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੀ ਦੁਆ।
ਹਮ ਤਾਰੀਫ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾਵੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਗੜਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तो प्रभु ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲੇ ਔਰ ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਗੇ। प्रभु आशीष दे। हाँ जी ठीक ओके। उधर आ जाओ ना। ठीक है। प्रभु का वचन कहता है कि वचन और काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। तो उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको ग्रीट करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, उसके नाम को मुबारक करते हैं।
आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमसे सिर्फ एक ही नाम के द्वारा बात करी है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और हम सब जानते हैं कि एक समय था जबकि हमारी समझ पूरी तरह से नहीं खुली हुई थी और हम सब किसी कन्फ्यूज़न में उलझे हुए थे और कई तरीके की शिक्षाओं में हम पड़े हुए थे, कई तरीके की टीचिंग में हम थे। हमें ये नहीं पता लगता था कि जो अब्राहम का खुदा है, इसाक का खुदा है, क्या वो मेरा भी खुदा है, और अगर वो मेरा खुदा है तो वो आज के वक्त में मेरे से कैसे बात करता है। तो फिर हमने जब इब्रानियों के ख़त में हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो कि आदि समय में, पुराने ज़मानों में बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा और बड़े बड़े नबियों के द्वारा अपने लोगों से बात करता था, और इब्रानी भाषा का लिखने वाला, इब्रानियों के ख़त लिखने वाला जो पौलुस है, वो ये कहता है कि उसने इस अंत के समय में अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करी। अब हमारी समझ में ये नहीं आता था कि खुदा अगर पिता है तो खुदा का बेटा तो हम जानते हैं यीशु मसीह है, तो ये बाप और बेटे में कैसा रिश्ता है? ये क्या बाप और बेटा दो अलग हैं या वो एक ही हैं? परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि एक ही परमेश्वर है, और अगर यीशु मसीह भी परमेश्वर है और उसका पिता भी परमेश्वर है तो फिर ये दोनों एक परमेश्वर कैसे हैं? ये एक बड़ा भेद था। और एक और चीज़ जिसके बारे में हम सुनते थे जिसका नाम है पवित्र आत्मा, कि वो भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर तो एक ही है, तभी एक में तीन और तीन में एक, ये बात जो थी, ये हम भेद जो है हमें समझ नहीं आता था, और आज भी कई लोगों को समझ में नहीं आता। जब तक ये भेद हमारे को समझ नहीं आएगा तब तक हम परमेश्वर को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमको ये नहीं लगेगा कि हम पिता की आराधना करें कि पुत्र की करें, कि हम पवित्र आत्मा की आराधना करें। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आराधना होती थी उसमें कहीं पुत्र का अधिकार ही नहीं है और ना पवित्र आत्मा का अधिकार है। और जब हम नए नियम में आते हैं तो वहाँ सारा कुछ पुत्र पुत्र और पुत्र, पवित्र आत्मा का भी जिक्र आता है, पिता का भी आता है। तो क्या वहाँ पर एक था और यहाँ पर तीन हो गए, या यहाँ पर भी एक है और हमारी समझ में कमी है? तो ये एक के तीन और तीन के एक कैसे हो गए? पहले तो ये चीज़ हमारे समझ में अगर आ जाए तो ये चीज़ हमारे को किसी ज्ञान से, किसी उपदेशक से, या किसी टीचर से, या किसी ज्ञान देने वाले इंसान के थ्रू समझ में नहीं आ सकती। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने लिखवाया है, और परमेश्वर ने अपने आत्मा से ये लिखवाया है। तो परमेश्वर का आत्मा ही हमको समझाएगा। आमीन। जिस सोर्स ने ये लिखवाया है वही सोर्स हमको समझाएगा, और जब तक हम उस आत्मा के कांटेक्ट में नहीं होंगे जिसने ये लिखवाया, तो वो आत्मा हमसे कैसे बात करेगा और हमारी समझ को कैसे खोलेगा? ये पवित्र बाइबल हम जानते हैं परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर का वचन जो है ये परमेश्वर का भाव है, उसके थॉट्स हैं, उसके विचार हैं, और उसकी प्रेरणा है, जो कि उसने अपने नबियों को और अपने चेलों को और अपने अपोस्टल्स को दी, और आत्मा ने उनसे बात करी, फिर आत्मा के थ्रू उन्होंने लिखा। और जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम खाली इस लेख को नहीं पढ़ते, वो आत्मा हमें बताए जिसने लिखवाया है। अब उस आत्मा के कांटेक्ट में हम कैसे जाएं जिसने ये लिखवाया है? यहाँ पर तो कुछ भी हम पढ़ देते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो उतनी बात तो समझ में आ जाती, पर उसका भेद नहीं समझ में आता। पुराने ऐतनामे से हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, नए में पढ़ते हैं, हमें मेल तो दिखाई देता है, पर कई चीज़ें जो है भेद की हैं वो हमें नहीं समझ में आती। तो ये हमें कैसे समझ में आएगी? जब तक कि हम अपने दिल को, अब परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा तुम्हारे लिए, और मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये मांगना और खटखटाना और खोजना हमारे लिए क्या चीज़ है? ये हमारे लिए, हमारा दिल जो है, हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारा मन है, एक हमारा दिल। दिल, ये उस दिल की बात नहीं हो रही जो एक बायोलॉजिकल दिल अंदर धड़कता है। ये वो दिल है जो हमारे भाव है, हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं,
हमारा करेक्टर है, हमारे विचार हैं, वो जो हम परमेश्वर के लिए रखते हैं, दिल से वो मतलब है यहाँ पर। ये कोई बायोलॉजिकल दिल की बात नहीं कर रहा। तो अब कोई दिल का मरीज है तो वो तो परमेश्वर को समझ ही नहीं सकता, ना वो परमेश्वर से प्यार कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर कहेगा जी आपका तो दिल ही नहीं काम कर रहा, तो परमेश्वर को कैसे समझो। वो फिजिकल दिल की बात नहीं कर रहा, हम अपने मन की बात कर रहे हैं। और एक है हमारी बुद्धि, जिसको हम अपना दिमाग बोलते हैं। अब हम अपनी बुद्धि को देख तो नहीं सकते ना। लोग कहते हैं जी ज़रा अपना दिमाग लगाओ, तो मैं दिमाग क्या लगाऊं, मैं दिमाग तो सिर में होता है लोग कहते हैं, तो सिर को कैसे लगाऊं मैं। आई मीन ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, पर ये समझ में आ जाए तो सिंपल है, ना समझ में आ जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए आज जो है बड़ी बड़ी शिक्षाएं, बड़े बड़े चर्चेज और बड़े बड़े जो परमेश्वर के ज्ञानी और ध्यानी लोग हैं, आज भी वो इसी भेद में छुपे हुए हैं। कई ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जिनको परमेश्वर ने बड़े सारे वरदान दिए हुए हैं। वरदान परमेश्वर किसी को भी दे सकता है, चाहे वो गैर जुबान बोलने का वरदान हो, चाहे वो चमत्कारिक कर्म करने का वरदान हो, चाहे वो प्रार्थना करने का वरदान हो, चाहे वो भविष्यवाणी करने का वरदान हो, चाहे गीत गाने का वरदान। ये वरदान है, ये परमेश्वर किसी को भी दे सकता है, चाहे वो आधा विश्वासी है, चाहे 50% विश्वासी है या 90% विश्वासी, ये वरदान किसी के भी पास होगा। पर ये जो वरदान है, ये जो गिफ्ट है, ये इस चीज़ का एविडेंस नहीं है कि वो बंदा बचा हुआ है या वो सेव्ड है या वो साल्वेशन पाया हुआ है। साल्वेशन जो है वो फ्री गिफ्ट है, और साल्वेशन जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से है। साल्वेशन किसी गिफ्ट से नहीं है, ना हमारे अच्छे कामों से है, और ना हमारी अच्छी पढ़ाई से है, ना हमारी किसी और चीज़ से है। साल्वेशन तो प्रभु यीशु मसीह के खून बहाए जाने की वजह से है। और उस पर अगर हम ये विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी और उसके खून बहाने से मेरे गुनाह धुल गए और मैं बचता हूँ उसके खून बहाने से, ये मेरी साल्वेशन है। पौलुस कहता है विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ। वी आर सेव्ड बाय बिलीविंग इन गॉड। हमें क्या बिलीव करना है? गॉड में तो सारी दुनिया बिलीव करती है। जो नास्तिक है उनको अगर हम छोड़ दें, जो नास्तिक है कहते हैं हम तो किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते, बाकी दुनिया तो किसी ना किसी गॉड में बिलीव करती है। तो वो गॉड है कौन जिसमें हमको बिलीव करना है? क्या अब लोग ये भी कहते हैं सबका मालिक, सबका बनाने वाला, सबका मालिक एक है। इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसमें जान है, जिसमें जीव है, उसका बनाने वाला तो एक ही गॉड है, एक ही परमेश्वर है। अब उस परमेश्वर को हम जाने कैसे? आज भी दुनिया में लोग भटक रहे हों, और बड़े बड़े लोग, कोई गुफाओं में जाता है, कोई शिवालयों में जाता है, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई नदियों के किनारे जाता है, कोई बड़े बड़े घरों में, मंदिरों में, शिवालयों में जाता है कि कहाँ जी भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान ढूंढने से कभी नहीं मिलेगा इस तरीके से। उसने, क्योंकि भगवान को ढूंढने के लिए तो भगवान तो सब जगह है, परमेश्वर तो सब जगह है, और परमेश्वर आत्मा है। इतना तो हर कोई बिलीव करता है कि परमेश्वर आत्मा है। इतना तो हर एक धर्म, हर एक शिक्षा बताती परमेश्वर आत्मा। अगर वो आत्मा ना हो तो सब जगह हो ही नहीं सकता। मैं कितना भी बड़ा ध्यानी और ज्ञानी हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अमेरिका में नहीं बैठा हूँ। हो सकता मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति हो कि मैं यहाँ से ऑपरेट करूँ कि अमेरिका में कुछ हिल जाए या रशिया में कुछ हिल जाए, पर मैं वहाँ मौजूद तो नहीं हूँ। ना मुझे सब कुछ पता हो सकता, ना मेरे अंदर सारी पावर हो सकती है, ना मैं कुछ सब जान सकता हूँ। तो परमेश्वर आत्मा, ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे ये, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, खुदा रूह है। ये तो बाइबल बताती है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करें वो सच्चाई में और आत्मा में होकर के, जो सच्चे विश्वासी हैं उसकी आत्मिक रूप में उसकी आराधना करेंगे। तो परमेश्वर रूह है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है तो बाइबल ये भी बताती है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा।
अब जिसको किसी ने नहीं देखा तो हम उसको कैसे मान लें? लोग तो कुछ भी सोच के उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग, आज भी पुराने ज़माने में भी लोग प्रार्थना करते थे। लोगों को पता चला कि अब्राहम का एक परमेश्वर था जिसने अब्राहम को दर्शन दिया। जब वो टेंट में था उसने उसको दर्शन दिया, उससे बातचीत करी, उसके घर खाना भी खाया, उसको पुत्र भी का प्रॉमिस भी किया, पुत्र भी दिया। और इसहाक उसका पुत्र था। तो इसहाक जो था वो परमेश्वर की ओर से अब्राहम को एक वरदान था। ऐसे आगे वंश चला तो याकूब के थ्रू चला, जिसका नाम बाद में इज़राइल हो गया। तो यहाँ तक तो लोगों को ये पता था कि एक परमेश्वर है। उसने दर्शन दिया था अब्राहम को। उसके पहले बाइबल बताती है, जो उत्पत्ति की किताब मूसा ने लिखी, जब मूसा तो बाद में पैदा हुआ, मूसा तो था भी नहीं, उसको कैसे पता उत्पत्ति में क्या हुआ था? पर वो एक नबी था। नबी को परमेश्वर वो सारा ज्ञान देता है, जो हो चुका होता है, जो हो रहा होता है, और जो होने वाला है वो भी देता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ज्ञान परमेश्वर अपने नबी को देता है। नबी जो होता है वो परमेश्वर का स्पोक्स पर्सन होता है। परमेश्वर उसके मुंह के द्वारा बोले वचन से बात करता है, और वो नबी नहीं बोल रहा होता, उसके द्वारा परमेश्वर बात कर रहा होता है। मूसा के द्वारा भी परमेश्वर बात करता था इजरायलियों से। मूसा से परमेश्वर बात करता था, फिर मूसा उसका वचन लेकर आता था, फिर वो वचन मूसा बोलता था तो इजरायलियों को समझ में आता था। क्योंकि अगर परमेश्वर वो डायरेक्ट वचन बोलता तो किसी को पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो बिजली चमकती थी और पहाड़ गरजते थे और पता नहीं क्या, लोग तो वैसे ही डर के मारे मर जाते थे, और जब मूसा भी परमेश्वर के सामने गया था तो मूसा को भी परमेश्वर ने अपना पूरा दर्शन कभी नहीं दिया। वो तो ये भी कहता था कि ये जगह जहाँ तू खड़ा है ध्यान से खड़ा रहे, अपने जूते उतार दे, ये बहुत पवित्र है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, वो जगह पवित्र होती है। इसीलिए हमें भी अगर अपने जीवन में परमेश्वर को इस्तेमाल करना है, उसको फील करना है, उसको अपने अंदर रियलाइज करना है, तो ये जो मंदिर है जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, ये मिट्टी का मंदिर है, हांड मास का मंदिर है। परमेश्वर के लिए ये हमारा टेम्पल है, बाइबल बताती है। तो हमें इसको भी पवित्र रखना है। ये नहीं कि हम गलत काम भी किया जाएं इन्हीं हाथों से, इसी दिल से, इसी हैकल से, और सही काम भी किए जाएं। तो जब हम गलत काम कर रहे होते हैं उस टाइम परमेश्वर नहीं होता है हमारे अंदर। परमेश्वर आत्मा है, वो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। परमेश्वर बहुत जेंटल आत्मा है, बहुत भला आत्मा है। परमेश्वर किसी को भी धक्का नहीं देगा कि तुम नरक में जाओ, और ना किसी को धक्का देगा कि तुम स्वर्ग में जाओ। परमेश्वर ने शुरू से जब मनुष्य को बनाया तो उसने उसको एक अपनी चॉइस करने का एक वो दिया, जरिया दिया है, फ्री चॉइस करने का, फ्री विल की उसने उसको चॉइस दी है। और हम देखते हैं व्यवस्था विवरण, जिसको ड्यूटरोनॉमी कहते हैं, हम पढ़ सकते हैं बाद में, उसमें 11वें और 16वें बाब में लिखा, परमेश्वर ने कई बारी वहाँ पर उनको लिखा है कि मैंने तुम्हारे आगे एक चॉइस रखी है कि अगर तुम ये ऐसा करोगे तो तुमको वरदान मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे, इसके खिलाफ करोगे, तो तुमको श्राप मिलेगा, यानी कि कर्ज मिलेगा। तो ये हमारे को श्राप मिल रहा है या वरदान मिल रहा है, ये परमेश्वर धक्का नहीं मार रहा, परमेश्वर नहीं करवा रहा हमसे। अगर परमेश्वर हमसे अच्छा और बुरा करवाए तो परमेश्वर हमारा न्याय क्यों करेगा फिर? अगर मैं जज के सामने खड़ा हूँ और जज कह रहा है जी कि आपने तो ये गलती करी है या आपने ये सही काम किया है, हाँ जी, तो आपके लिए या तो इसको सज़ा मिलेगी या आपको कुछ इनाम मिलेगा। तो वो काम जज ने तो नहीं किया ना, और ना जज ने करवाया, किया तो मैंने ना। तो अगर परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और मैं उसके हाथ की रचना हूँ, पर उसकी रचना तो ज़रूर हूँ, पर मैं उसके हाथ में चाबी वाला खिलौना नहीं हूँ कि उसने जितनी, मैंने हम छोटे छोटे थे, एक गाना सुनते थे फिल्मों का, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उसका सारांश है वो ये है कि जितनी चाबी भरी भगवान ने उतना ही चलेगा खिलौना।
लिखने वाले ने तो लिख दिया, फिल्मों में आ गया गाना, बड़ी वाह वाह हो गई, लोगों ने तालियां बजा दी, पर उसका सार क्या है? कोई अपने दिमाग से सोचे कि तुम तो भगवान को बदनाम कर रहे हो कि जितनी चाबी भरी उसने उतना खिलौना चलेगा। तो चाबी जब उसके हाथ में है तो मेरा न्याय क्यों करेगा? फिर तो न्याय उसका होना चाहिए जिसने चाबी भरी। सारे गलत काम मैं अच्छे कर रहा हूँ, बुरे कर रहा हूँ, जिम्मेदार वो है। पर समझ हमारी बाइबल से ये समझ हमें समझ आई। अब कई अच्छे अच्छे विद्वान मेरे दोस्त हैं, आप लोगों के भी होंगे, चाहे वो किसी भी शिक्षा में हो, किसी भी धर्म में हो, वो कहते हैं देखिए अच्छा बुरा जो हो रहा है सब ऊपर वाले के हाथ में है जी। तो मतलब जिम्मेदार वो है, उसको ब्लेम कर दो और आप क्लियर हो जाओ बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी गलत फहमी और कितनी बड़ी हम श्राप अपने ऊपर ला रहे हैं जब हम ऐसी बात भी अगर जुबान से निकालते हैं। बात ये है, मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, इसका ज्ञान परमेश्वर ने इसका ज्ञान मेरे पास है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, पर कर तो मैं रहा हूँ। हाथ पैर में 5 इंद्रियों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले क्या होता है, पहले मैं अपने दिल में उसके बारे में विचार बनाता हूँ। अगर मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अब मैं जाके चोरी करूँ, तो पहले ये विचार आया कि मैं चोरी करूँ, और उसके बाद अगर मैंने किसी और के साथ जाना है चोरी करने, तो हो सकता है मैं कुछ बोलूँ, उसको भी अपने साथ मिला लूँ, तो मेरा फिर ये वचन बन गया। उसके बाद अगला स्टेप मेरी हरकत। फिर मैं उठूँगा, मैं कुछ औजार लूँगा या कुछ लूँगा और वहाँ जाऊँगा, कैसे भी जाऊँगा, फिर वहाँ जाके मैं तोड़ फाड़ करके चोरी करूँगा। पहले विचार आता है, उसके बाद हरकत आती है। और या किसी को हम गलत वचन बोलना है तो उसका विचार आएगा, फिर वो वचन मुंह से निकलेगा, फिर उससे हो सकता है बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाए और कुछ हो जाए। तो ये स्टेजेस हैं गुनाह करने की। और यही अगर अच्छा विचार उपजाया कि मैं किसी का भला कर दूं, तो मैं भला बोलूँगा, उसके बाद मैं फिर भला करूँगा। तो ये जो चॉइस है ये किसकी है? ये हमारी है। और ये चॉइस अगर परमेश्वर हमको नहीं देता, प्रभु हमको नहीं देता, तो फिर ना तो हमें पता चलता कि वो हमें प्रेम करता है, ना पता चलता मेरा उद्धार करेगा, ना मुझे पता चलता पाप क्या है, ना मुझे पता चलता पुण्य क्या है, ना मुझे पता चलता स्वर्ग या नरक क्या है। तो हमारी शुरुआत पहले तो इस अंडरस्टैंडिंग से हुई। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हुई वो सिर्फ इस किताब से हुई। आज तक हम भी कहाँ से निकल के आए हैं, हम में से बतेरे, आज तक हमें किसी के भी धर्मशास्त्र ये नहीं समझा सके जो अब हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ क्योंकि ये इस चीज़ का प्रमाण है, इस चीज़ का एविडेंस है कि हम सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं। और वो परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता भी है, हमें प्रेम भी करता है, और उसको ये भी पता था कि हमने गुनाह में पड़ना है। परमेश्वर को पहले से पता था कि इंसान जब बनेगा तो वो गुनाह में गिरेगा, पर गिरेगा अपनी मर्जी से। पर परमेश्वर ने पहले से चेता दिया था कि यह काम मत करना। और उनको पता था यह काम नहीं करना, फिर उन्होंने किया, क्योंकि उनके ऊपर उस दुष्ट आत्मा ने आकर के उनको लुभाया। और परमेश्वर को पता था कि वो आएगा। बाइबल में लिखा उत्पत्ति की किताब में कि वो दुष्ट भी जो था वो बागे अदन में था। The evil one, the serpent, the beast was also in the garden of Eden. You know, तो वो जब इंसान को उसने बनाया था उस गार्डन ऑफ ईडन में वो भी था। और सिंबॉलिक रूप पे हम ये देखते हैं, चिन्ह के रूप में हम ये देखते हैं कि वो एक भले और बुरे के पेड़ के रूप में वहां पर मौजूद था। अब आज तक हमारी समझ, बहुत दिनों तक ये समझ थी कि वहां पर एक पेड़ था जी, उस पेड़ में एक फल लगता था, और एक और पेड़ था उसमें भी एक फल लगता था। वो जो पेड़ था दूसरा वाला, उसमें जीवन का फल लगता था, और ये जो था पेड़, इसमें भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ लगता था। वो बुरा फल नहीं था, वो ज्ञान का फल था। वहां पर 2 वर्ड लिखे हैं, गुड एंड द इविल, द फ्रूट ऑफ गुड एंड द इविल। इसका मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। वो एक ऐसा फल था जिससे इंसान को ये पता चल जाए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और वो नेचर आज भी हमारे हम जितने पैदा होते हैं, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर वो ज्ञान नहीं होता, वो अनजान होता है।
तभी कहता है कि प्रभु यीशु कहता था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अनजान होते हैं, नादान होते हैं, स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। क्यों ऐसों ही? ये नहीं कि स्वर्ग के राज में सिर्फ बच्चे जाएंगे, उसका कहने का ये मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे बच्चा जो होता है उसको और भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, उससे गलतियां हो जाती हैं, पर वो गलतियां उसकी गुनाह काउंट नहीं होंगी। बच्चे ने कोई किसी को थप्पड़ मार दिया या चोरी कर दी या गुस्सा हो गया या कोई चीज़ तोड़ दी या मना करने पर भी कुछ कर दिया उसने, पर वो छोटा नादान बच्चा है, उसको गलती, परमेश्वर उसको गलती अकाउंट करता है, उसको गुनाह अकाउंट नहीं करता। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जब उसको ये पता लग जाता है अब ये करना है तो ये ऐसे करना है, ये ऐसे, अब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। ये कहाँ से आया ज्ञान? कोई स्कूल में तो सिखाया नहीं कि भाई तुम चोरी करना है, झूठ बोलना है, किसी को मानना। ये कहाँ से आया? ये हमारे अंदर जो बीज बैठा हुआ ना, जो हमारे माँ बाप से चल के आया बीज, उनका उनके माँ बाप से चल के आया बीज, और वो बागे अदन से चल के आया बीज। ये हमारे अंदर वो बीज, हमारी जीनियोलॉजी के अंदर, हमारे अंदर पाप करने का जो एक वो है इंटेंशन, वो कहाँ से आया? वो हम सब के अंदर है। और इसीलिए ये जब तक हमारा ये, जिसको हम अपनी नेचर कह सकते हैं, ये हमारी प्रकृति है, हमारा कैरेक्टर, ये हमारी नेचर है। हमें कोई नहीं सिखाता गुनाह कैसे करना। जैसे ही हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं, गुनाह शुरू हो जाता है। तो क्यों शुरू हो जाता है? जो ऐसा बीज है वैसा फल होगा। अगर हम संतरे या अनार या आम किसी अलग अलग टाइप के होंगे, तो जिस फल का हम बीज लगाएंगे, जब पेड़ लगेंगे तो छोटे छोटे सारे एक से पेड़ लगेंगे। जब उसके अंदर फल लगेगा तब पता लगेगा कि उसका बीज क्या था। तो किसान समझ जाएगा भाई ये जो फल है ना, अब इसको सेपरेट कर लो, ये। ऐसे ही हमारे अंदर जो बीज चल रहा है वो पाप का बीज है। उस पाप की बीज से हमारे अंदर नेचर है। तो अब जब तक हमारा वो बीज चेंज नहीं होगा, तब तक हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा, इटर्नल लाइफ कैसे मिलेगी? ये परमेश्वर ही कर सकता है, तभी होगा। कैसे करा उसने? उसने कहा मैं तुम्हारी जो नेचर है ना वो बदल दूंगा। नेचर बदलने के लिए परमेश्वर ही कुछ कर सकता, हम तो नहीं कर सकते। पर परमेश्वर जो हमें बताता है, हम कम से कम उसे विश्वास कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें सहायता परमेश्वर करेगा, पर हमारा मन होना चाहिए उसको बदलने के लिए। अगर हमारा मन ही नहीं है उसको बदलने के लिए, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, वो बीज अपनी जगह रहेगा। परमेश्वर ने हमें यह ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के अंदर एक सिंपल सी आयत है जो हम सबको आती है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हम सब से कोई पूछे तुम्हें कौन सा जीवन चाहिए, तो जवाब सारे देंगे अनंत जीवन चाहिए। अनंत जीवन क्या होता है जी? जहाँ ना रोना हो, ना पीड़ा हो, ना मरना हो, ना बुढ़े होना हो, ना दर्द हो, ना डॉक्टर हो, ना अस्पताल हो, ना शिक्षा के लिए जरूरत पड़ो, ना कोई प्रीचिंग करनी पड़े हमें वहां पर। वो अनंत जीवन है। जहाँ अनंत जीवन में जहाँ बचाए हुए लोग जाएंगे, उनको प्रीचिंग करने की क्या जरूरत है? उन्हें प्रीच करने की भी क्या जरूरत है? वो तो बचे बचाए। प्रीच करने की तो अभी जरूरत है जिससे हम बच जाएं। परमेश्वर ने हमें अपना वचन इसलिए दिया जिससे हमारा उद्धार हो जाए। विश्वास इसलिए करना है कि हमारा उद्धार हो जाए। वहां जाके हमें विश्वास तो नहीं करना ना, हम विश्वास किए कराए लोग हैं, तभी तो हम पहुंचेंगे, दूसरा तो पहुंच ही नहीं सकता। तो परमेश्वर ने एक रास्ता हमारे लिए बना दिया कि वो अनंत जीवन जो हमको प्राप्त करना, जो हर इंसान चाहता है, कोई और तरीका नहीं है अनंत जीवन में जाने का। पहली चीज तो हमें ये पक्का हो गया, अनंत जीवन में जाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने बोला कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, आई एम द वे। और क्योंकि परमेश्वर एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, इसलिए परमेश्वर के पास जाने का रास्ता भी एक है। और वो परमेश्वर के पास वो जाने का रास्ता वही हो सकता है जो परमेश्वर दिखाए और परमेश्वर बनवाए और परमेश्वर ही चलाए। वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा है, परमेश्वर है, वो ही यीशु मसीह है।
अब हमें ये कैसे पता लगा कि वो जो पिता या खुदा या गॉड है वो यीशु में कैसे आ गया, वो यीशु का और उसका क्या संबंध? ये भी एक भेद है जो परमेश्वर ने ही हमारा क्लियर किया। वरना तो आज भी कई चर्चेज में भी ये प्रीच किया जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 व्यक्तित्व हैं, 3 पर्सनैलिटी हैं, ये 3 पर्सन हैं। हम यहाँ जितने बैठे हैं हम सब पर्सन्स हैं। हमारी रूह तो हमारे अंदर है पर हम हैं तो पर्सन ना, फिजिकली। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 पर्सन है तो 3 पर्सनैलिटी भी होंगी। जब पर्सनैलिटी होगी वहीं पर्सन होगा। तो क्या, और फिर वो चीख चीख के कह रहा, सुने इज़राइल, मैं तेरा खुदा एक ही खुदा हूं। और फिर पुराने ऐहदनामे के अंदर कहीं पर भी बेटे का और पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं आता कि वहां बेटा बैठा था फिर वहां पवित्र आत्मा बैठा था। ये बातें कहाँ खुली? ये जब आगे बात चली तब ये बातें खुली। जब बेटा पैदा हुआ तब पता चला ये परमेश्वर का पुत्र है। फिर उसने यूहन्ना 14 बाब के अंदर में उसने बताया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्योंकि लोगों का सवाल था, कहता भाई तू खुदा कहता है, पिता कहता है, तो वो दिखा तो सही जिसे तू पिता कह रहा है। हु इज योर फादर? तो उसने बोला, इफ यू हैव सीन मी यू हैव सीन द फादर। अब ये उसने कह तो दिया, बड़ी सिंपल सी बात है। जो विश्वासी होगा वो मान लेगा, यस यू आर द फादर। जो विश्वासी नहीं होगा तो कहेगा यार ये बात समझ में नहीं आ रही, ये कैसे यकीन कर लूँ? तुम तो अभी 30 साल की तुम्हारी उम्र है मुश्किल से, तुम कारपेंटर का लड़का है, नासरत में पैदा हुआ है, यू नो, तुम कैसे कह रहा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? तो क्या तुम बाप भी हो? पर वो भेद उनके, जिसके समझ में आता था उसके तो आ गया, जिसके नहीं समझ में आया वो आज तक यही ढूंढ रहा है कि वो बाप कौन है। वो आज तक 3 के चक्कर में है। आज तक तभी भी वो जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना ख़त्म होती है तो वहाँ पर चर्चेज में दुआएं होती हैं, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आपके साथ होती रहे। ये दुआ होती है हर चर्चेज में, आप देख लो किसी चर्च में उठा के। ये 3 बातें क्यों बोलते हो? अभी भी तुम्हारे अंदर से वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा 3 चीज़ें नहीं निकली है। वो 3 चीज़ें हैं क्या? परमेश्वर तो आत्मा है, और परमेश्वर जो वो आत्मा है, जो याकूब अब्राहम का खुदा है, वो आत्मा है। वो वही आत्मा आज भी है, और वही आत्मा उस बच्चे के अंदर था जो पैदा हुआ, जिसका नाम यीशु है। यीशु जो है उसका, यीशु एक मनुष्य था जो पैदा हुआ था। परमेश्वर ने एक शरीर धारण किया था। ये हम बेसिक बातें क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि इन बेसिक बातों को दोहराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ये बातें क्लियर नहीं हैं। हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम भटक जाते हैं, मटक जाते हैं कि नहीं पादरी साहब से पूछ के बताएंगे। वो यार पादरी साहब क्या पूछ के बताओगे? ये पादरियों का पादरी बैठा हमारे पास। आमीन। अगर अगर हमारे ये समझ है तो ये परमेश्वर से हमारा मेल डायरेक्ट है, बशर्ते कि हमारा मन इसकी तरफ लगे और हम इसको विश्वास करें। आमीन। तो परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर कोई भी रूप धारण कर सकता है। परमेश्वर तो कोई भी, परमेश्वर जब अब्राहम के टेंट में आया था तो वो अपनी थियोफनी में आया था। वो थियोफनी में आया और उसने खाना भी खाया, दूध भी पिया, मीट भी खाया। अपने साथ 2 एंजल लाया था, उनको वहां सदोम गमोरा भी भेज दिया। परमेश्वर ने सारा की हंसी को भी सुना। परमेश्वर ने उससे सवाल भी पूछा, ये क्यों हंसी? तो इसका मतलब वो किसी आदमी के रूप में आया था, पर था वो परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, गॉड विजिटेड हिम, गॉड स्पोक टू हिम एंड गॉड प्रॉमिस्ड हिम कि मैं आऊंगा, जब जीवन के काल में होऊंगा तो अगले साल में आऊंगा, और उसके बाद में सारा जो है वो पुत्र जनेगी। और वैसा हुआ। तो वही जो परमेश्वर था, उसने जब शरीर धारण किया हमारे सैक्रिफाइस के लिए, वो शरीर का नाम था यीशु। और वो किसी बायोलॉजिकल फादर से पैदा नहीं हुआ था।
ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे समझने की और हमारे विश्वास की। जो बुनियाद है वो ये है कि यीशु किसी बायोलॉजिकल फादर से पैदा नहीं हुआ था। हम सब एक बायोलॉजिकल शारीरिक पिता की संतान हैं, और क्योंकि हम शारीरिक पिता की संतान हैं इसलिए हम पवित्र नहीं हैं। हम पवित्र तब तक नहीं हो सकते जब तक हम वैसे ना पैदा हों जैसे यीशु पैदा हुआ था। यीशु मसीह आत्मा से पैदा हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत में निकोदेमस से कहा था कि जब तक कोई मनुष्य आत्मा से पैदा ना हो और जल से पैदा ना हो तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। तो बात घूम के यहाँ पर आती है कि हम जिस नेचर को लेकर पैदा हुए हैं आज, जो पाप करने की नेचर है, कोई नहीं सिखाता, पाप हम कर देते हैं। किसी स्कूल में नहीं जाते, पाप कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जी हाउ टू सिन, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर जो बीज बैठा वो ऑटोमेटिकली अपना फल मैनिफेस्ट कर देता है। जब तक वो चीज़ हमारी चेंज नहीं होगी तब तक हम पाप करने से बाज नहीं आ सकते। वो कौन दूर करेगा? वो वही दूर करेगा जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। हमारे पापों के लिए अपनी जान प्रभु यीशु मसीह ने दी। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। वो बेटा कैसे हो सकता है? एक परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है? ये कई दूसरे धर्म के लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ जी कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब खुदा की बीवी भी होनी चाहिए। तो खुदा की बीवी कौन है? तो कई चर्चेस वाले जो हैं फिर वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि वो मरियम का बेटा है, तो इसका मतलब ये है कि मरियम खुदा की बीवी हो गई। यहाँ तो सारा ही उल्टा पलटा हो गया मामला, और कन्फ्यूज़न हो गया। यहाँ मामला सारा आत्मिक है, शारीरिक मामला नहीं है। शारीरिक पिता की बात नहीं हो रही, शारीरिक माँ की बात नहीं हो रही। यीशु मसीह इतना बड़ा हो गया 30-32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में जब वो सूली पे चढ़ा। बाइबल गवाह इस चीज़ की न्यू टेस्टामेंट में, कभी यीशु ने आज तक मरियम को माँ कह के नहीं बुलाया। हमेशा उसने उसको औरत कहा। और जेनेसिस में लिखा है कि शैतान को खुदा ने बोला था मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के बीच में अदावत पैदा करूंगा। I will put enmity between your seed and the woman's seed. Who was the woman's seed? Jesus Christ. तो यहाँ पर बात हमारे को ये समझ में आ रही है कि वो जो था वो प्रभु यीशु मसीह, उसका पिता पवित्र आत्मा था। वो बार बार कह रहा है मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ। और पिता कौन है? खुदा बाप, यहोवा, गॉड। वो एंड गॉड इज स्पिरिट। तो प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन है? स्पिरिट। अब अगर पिता स्पिरिट है, गॉड जो फादर है अगर वो स्पिरिट है, और एक तीसरी चीज भी है जिसे हम होली स्पिरिट कह रहे हैं, तो ये 2 स्पिरिट कैसे होगी? और ये अगर तीन पर्सन है, पहला पर्सन तो स्पिरिट है, दूसरा पर्सन बेटा हो गया, और तीसरा पर्सन भी अगर स्पिरिट है, तो स्पिरिट 1 और स्पिरिट 2 में यीशु मसीह का असली बाप कौन है? तो यीशु मसीह तो फिर क्या नाजायज औलाद है क्या? नहीं। इसका मतलब वो पिता जो स्पिरिट है और होली स्पिरिट जो स्पिरिट है वो एक ही स्पिरिट है। आमीन। सो गॉड इज वन एंड गॉड इज वन स्पिरिट। दैट वन गॉड इज वन स्पिरिट। आमीन। खाली बाप और बेटे का जो संबंध पैदा हुआ वो कब पैदा हुआ? जब वो वाली जो स्पिरिट है उससे एक शरीर पैदा हुआ, एक बॉडी। हिब्रू में लिखा है कि ही टुक ए ह्यूमन बॉडी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, टू गिव सैक्रिफाइस फॉर अस। क्योंकि पवित्र आत्मा को आप सूली पर नहीं लटका सकते, पवित्र आत्मा को आप मार नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, किसी कमरे में नहीं बंद कर सकते, वो तो सब जगह सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर ने अपने उस काम को करने के लिए अपने आप को एक जिस्म दिया। तो वो जो जिस्म बनाना था, वो जिस्म किसी बायोलॉजिकल आदमी के थ्रू नहीं बनाना था जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, नहीं, वो परमेश्वर नहीं बनाना था। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वचन भेजा जिब्राइल फरिश्ते के थ्रू मरियम के पास। मरियम एक विश्वासी औरत थी, एक अच्छी औरत थी। परमेश्वर उसके कैरेक्टर को जानता था और ये भी जानता था कि जब इससे कोई बात मैं करूंगा तो ये विश्वास करेगी और सच्चे दिल से विश्वास करेगी।
जब सच्चे दिल से विश्वास करेगी तो वो जो वचन है वो इसके अंदर जाकर के जीवन पैदा कर देगा। हम भी एक स्त्री के समान हैं, एक ब्राइड के समान है। हम जब उसका वचन सुनते हैं, उसका वचन परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। सारी की सारी बाइबल यूहन्ना के पहले चैप्टर के अंदर में पूरी एक समझ में आ जाती है। वहां से कोई ये गुंजाइश ही नहीं रहती कि हम तीन परमेश्वर करें, कि फादर सन होली स्पिरिट करें या ट्रिनिटी करें या कुछ भी करें। बात बिल्कुल, आदि में कौन था? वचन था। वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। और वचन क्या था? परमेश्वर था। तो वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर और वचन में कोई अलग चीज नहीं है वो। और देहधारी क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। तो वचन ही परमेश्वर था, तो देहधारी कौन हुआ? परमेश्वर देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यहां से ये लिंक बिल्कुल क्लियर है। और जब हम, होता क्या है, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो उसको भूल जाते हैं, उसको पढ़ रहे हैं तो इसको भूल जाते हैं, पर हमें सारे वचन को मिलाकर जोड़कर समझना है और उसको भूलना नहीं है। क्योंकि वचन जो है परमेश्वर का वचन, मत्ती 4:4 में लिखा है कि हर शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है हमारा उद्धार होता है। एवरी वर्ड विच कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। तो परमेश्वर ने ये जो वचन, जो शरीर धारण किया हमारे लिए, इस शरीर के को क्यों धारण किया? जिससे कि ये शरीर में जो खून है, वो खून कहां से आया? वो यूसुफ का खून नहीं है, ना वो मरियम का खून है। ये परमेश्वर की आत्मा में जो सेल था, उसमें जो लाइफ थी, उससे ये खून बना। और परमेश्वर पवित्र है, तो ये खून भी पवित्र है। इसीलिए पाप का मोल वो खून चुका सकता है जो खुद पवित्र हो, जिसने कभी गुनाह ना किया हो। तो इसीलिए हम, अगर अब्राहम भी अगर अपने बेटे की कुर्बानी दे देता ना, वो यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो अब्राहम का बायोलॉजिकल फादर का बेटा था। वहां भी गुनाह का मामला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां पर भी रोक दिया। और परमेश्वर ने, जब उसने पूछा, उसके लड़के ने पूछा, वेयर इज द लैम, वेयर इज द सैक्रिफाइस। उनको पता था सैक्रिफाइस कराने तो जा रहे हैं, पर उसने पिता से पूछा कि सैक्रिफाइस कहाँ है, बलिदान का बलि का वो किधर है मेमना। तो वहां पर इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, द गॉड लॉर्ड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। परमेश्वर स्वयं देगा, स्वयं। ये बात बहुत गहरी है। परमेश्वर स्वयं देगा। अगर मैं किसी को बोलूं वहां से जाके ये चीज खरीद लो, तो वो खरीद लाएगा। पर अगर मैं उसे बोलूं मैं खुद दूंगा, इसमें फर्क है। वहां पर एक मेमने का दरकार है, एक लैम की जरूरत है, एक बलिदान की जरूरत है। और खुदा जो है अब्राहम के मुंह से बोल रहा है, वो जो कि प्रॉफिट है, द लॉर्ड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। आगे जाके लॉर्ड हिमसेल्फ प्रोवाइडेड, लॉर्ड हिमसेल्फ प्रोवाइडेड। दैट लॉर्ड हु इज स्पिरिट, हु इज गॉड, गॉड ऑफ एवरीबॉडी, ही बिकेम द लैम। तो प्रभु, जो हमारा जो पुराना नियम है, वो नए नियम से आके यहाँ पर जुड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर खुद आ गया। अब परमेश्वर तो आत्मा है। अब प्रभु यीशु मसीह के एक आयत अगर हम यहाँ पर पढ़ दें, जिससे कि हमें, बहुत लंबा हम नहीं करना चाहते, पहला तिमोथी 3:16 अगर आप पढ़ें प्लीज हिंदी में। फर्स्ट तिमोथी 3:16। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, फिर हिंदी पढ़ देना। विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, seen by the angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in the glory। परमेश्वर के बारे में बताया कि परमेश्वर कौन है और कैसे हमारे ऊपर वो अवतरित हुआ। और इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का वेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ
आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमीन। यहाँ पर सारी प्रोसेस उसने बताई है, परमेश्वर कौन है, क्यों उसने शरीर धारण किया, फिर कैसे वो ग्लोरीफाई हुआ, क्या क्या उसने किया, यू नो। और अगर हम यूहन्ना जॉन 14:9 को पढ़ते हैं, यहाँ पर जब चेलों ने उससे सवाल पूछा कि तू हमें बता कि पिता कौन है और परमेश्वर कौन है, तो वो उनको जवाब देता है यीशु मसीह जॉन 14:9 में, यह Have I not been with you for so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? फिलिप्पुस ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हम 10वीं आयत भी पढ़ रहे हैं। Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me आमीन। does the work. और 11वीं आयत में लिखा है, Believe me that I am in the Father and Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। आमीन आमीन। यहाँ पर भी वो कितनी सफाई से बता रहा है कि यीशु मसीह बता रहा है कि पिता के साथ क्या संबंध है। पर लोग कहते हैं क्योंकि वो पिता पिता करके बोल रहा है, इसका मतलब पिता कोई दूसरा है, सफ़ेद दाढ़ी वाला बुड्ढा जो आसमान में बैठा हुआ है वो पिता है, क्योंकि यहाँ पुत्र बात कर रहा है। तो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अभी देखिए वो क्या कह रहा है, मैं पिता के अंदर हूँ और पिता मेरे अंदर है। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं किसी से कहूँ जी कि ये बंदा या ये बच्चा मेरे अंदर है और मैं इसके अंदर हूँ, लोग कहेंगे जी आप तो कुछ दिमाग की बात नहीं कर रहे जी, आप तो फिर दोनों एक ही हुए ना, आप दो पर्सन नहीं हो सकते, फिर कोई और मामला है जो कि आप एक ही हो। तो लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, लोग कह रहे हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा 3 पर्सन्स हैं। जैसे ही हमने पर्सन बोल दिया ना वहीं गड़बड़ होगी। उस एक ही पिता के 3 मैनिफेस्टेशन हैं, 3 रूप हैं। वो तो बिल्कुल सही है, वो हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो यहाँ पिता पिता बोल रहा है तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं वो पिता नहीं बोल रहा, वो तो बाइबल है। और कौन बोल रहा है? पुत्र बोल रहा है। तो उसका मतलब क्या है, उसका रेवलेशन क्या है, उसका भाव क्या है, उसका भेद क्या है? पिता आत्मा है और वो आत्मा वो पुत्र के शरीर के अंदर है, तभी तो वो कह रहा है वो मेरे अंदर है। और जब वो सलीब पे चढ़ा था तो वो जो उसके अंदर था वो उसे छोड़ के चला गया, तभी वो कहता है मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सलीब पे तो उसका शरीर मर रहा है। सलीब पे तो यीशु जो शरीर में इंसान था वो मर रहा था। खुदा थोड़ी मर सकता है, खुदा को कौन मार सकता है? वो तो आत्मा है। आमीन। पर उसका मरना क्यों जरूरी था यीशु का? क्योंकि उसके सिर के ऊपर तो सारी दुनिया के गुनाह लाद दिए थे उसने। सारी दुनिया की, हम सब की गठरी लाद दी थी, जितने हमसे पहले पैदा हुए और हमसे बाद में पैदा होंगे सबकी गठरी उसने उठा ली। बार बार सूली नहीं चढ़ेगा वो, बाइबल में लिखा ही वेंट टू द क्रॉस वंस फॉर ऑल। एक बारी उसने हम सबका फिदिया दे दिया। तो अब क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, खुदा तो होली पवित्र है, पाक है, तो जहां उसने गुनाह की गठरी उठा ली
तो खुदा को उसको छोड़ना ही पड़ेगा। खुदा और गुनाह का कोई मेल नहीं है, ज्योति और अंधकार का, विश्वासी अविश्वासी का कोई मेल नहीं बाइबल में लिखा है। तो वो मसीह जो था वो गुनाहगार नहीं था, वो गुनाह बन गया मेरी और आपकी खातिर। अब इस बात को अगर हम सोचें तो हमारे तो दिल छिप जाएंगे। हमें तो इतना कष्ट होना चाहिए कि खुदा ने ऐसा इंतजाम मेरे लिए कर दिया जो मैं नहीं कर सकता था, मेरा बाप भी नहीं कर सकता था, मेरा बाप का बाप भी नहीं कर सकता था, अब्राहम भी नहीं कर सकता था, जो खुदा ने मेरे लिए कर दिया। क्यों कर दिया? वो मुझसे प्यार करता है, वो चाहता है कि मेरा जीवन बच जाए। तो हम सब के लिए एक लेसन है कि उस परमेश्वर ने जिसने हमसे ऐसा प्यार किया, और उस एक बारी जब हमें उसके ज्ञान की नॉलेज मिल गई तो फिर हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसी शिक्षाएं देते हैं हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा धर्मात्मा हो, कितना बड़ा प्रीचर हो, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और हमने अभी शुरू में देखा कि हमारे पास चाहे कोई भी वरदान हो, चाहे मेरी मिनिस्ट्री से कोढ़ी चंगे हो रहे हों, या अंधों को आंखें मिल रही है, या मुर्दे जी रहे हों, या गैर जुबानें बोली जा रही हों, या कुछ भी हो रहा हो, ये इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि मैं सेव्ड इंसान हूँ। इसका क्योंकि वो वरदान है, वो गिफ्ट्स हैं, वो परमेश्वर किसी को भी दे सकता है। बाइबल में लिखा है गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। किसी ने पश्चाताप भी नहीं किया, वरदान मिला उसको। पौलुस कहता है 13वें बाब में, पहले कुरिन्थियों में, चाहे वो गैर जुबानें हों, चाहे वो हीलिंग की पावर हो, चाहे ये मिनिस्ट्री हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, वो मजमा लगाने के लिए तो ठीक है। यीशु मसीह के पास भी मजमे वाले लोग आते थे, बड़ी भीड़ आती थी, मेरा हाथ ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, रोटी मछली खिला दो, उसके बाद घर जाओ। बाद में कितने थे जो वापस आते थे? उसने 10 कोढ़ी ठीक किए, एक ही वापस आया था। तो यीशु ने कहा था क्या वो 9 ठीक नहीं हुए? तो मेन चीज क्या है कि खुदा हील तो करता ही है, वो हमारे अंदर जान ही वही डालता है, हमारी बीमारियों को ही वो ठीक करता, वो तो करेगा ही ठीक। पर बात यह है कि मेरा ठीक हो जाना, मेरा हाथ ठीक हो जाना, मेरी आंख ठीक हो जाना, मेरी नौकरी लग जाना, मेरी औलाद पैदा हो जाना, ये मुझे हेवन में नहीं ले जाएगा। मुझे हेवन में क्या ले जाएगा? जब मैं आत्मा और जल से पैदा हुआ हूँ। और वो जल कौन सा जिससे मुझे पैदा होना है? इफिसियों 5:26 आप पढ़ दें प्लीज, आखिरी आयत, उसके बाद हम खत्म करें। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि हम लोगों के बीच में पाया जाता है, पर प्रभु का धन्यवाद है कि अगर हमको उसकी समझ मिल जाए, और उसकी समझ हमें उसके वचन से ही मिलेगी, वचन के बाहर से कोई समझ नहीं दे सकता। इसलिए वचन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी है। हमें इसको कनेक्ट करके चलना है। जॉन यूहन्ना 3:3 में जो लिखा है, जब तक कोई आदमी जल और आत्मा से पैदा नहीं होता वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। 5 और उसका 26 हाँ जी, कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध हो जाओ और पवित्र बन जाओ। और पहला पतरस 1:23 भी पढ़ दें, क्योंकि वो वर्ष भी इसके साथ कनेक्टेड। जब क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट की आयतों को कई जगह पढ़ते हैं ना, तो वो एक तरीके का विटनेस बन जाता है, टेस्टिमनी बन जाता है। नहीं तो कहेंगे जी थी एक वर्ष है, तब पर इसका क्या मतलब हुआ? तो वर्सेस में जब हार्मनी होती है तो वो इसीलिए तो परमेश्वर का वचन बना के अलग अलग लोगों ने बोला पर एक ही बात बोली, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। एक बार फिर पढ़ दें इसको प्लीज। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। तो हमने नया जन्म हम कैसे पाते हैं? जब हम उस बीज से जो परमेश्वर का वचन है, जो नाश नहीं हो सकता, जब हम इससे पैदा होते हैं, वो हमारा नया जन्म होता है। और इसका जो अब हमने कनेक्ट किया इफिसियों 5:26 में, कि जो हमने जो 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 वचन रूपी जल है,
वचन रूपी जो जल है, जब हम इससे स्नान करते हैं, इससे अपने आप को पाक करते हैं, तब हमारे गुनाह साफ होते हैं, तब हम सैंक्टिफाई होते हैं, तब हम पवित्र करते हैं। गलत फहमी यहाँ पर कहाँ आ जाती है? लोग कहते हैं यूहन्ना 3:3 में परमेश्वर ने लिखा कि जब तुम जल और आत्मा से तुम्हारा जन्म नहीं होगा तब तक तुम परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। तो वो कहते हैं वो जल है जो इसमें तुम बपतिस्मा लेते हो। मैंने बड़े बड़े पास्टर्स को देखा ये बात प्रीच करते हुए, पर कहाँ कनेक्ट हो रही है ये बात? कहीं पर भी बाइबल में ये बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर की आज्ञा है, बिल्कुल सही है, पर यह कह देना कि बपतिस्मा लेने से मेरा उद्धार हो जाएगा, ये बाइबल कहीं नहीं कहती। पर मैं प्रभु यीशु मसीह वो कहते नहीं, प्रभु यीशु ने बोला जल और आत्मा से, तो कौन सा जल है ये भी तो देख लो। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मे के जल की बात नहीं कर रहा, वो तो परमेश्वर के वचन रूपी जल से हमें स्नान करना है। और ये जब हम इस जल से जो परमेश्वर का वचन रूपी जल है, जब हम इससे डेली अपने आप को पाक साफ करते हैं, डेली अपनी धुलाई करते हैं, तो डेली हमारी सफाई होती रहती है। क्योंकि शैतान तो जिंदा है, अभी मारा नहीं गया, अभी फेंका नहीं गया, अभी तो वो और बड़े बड़े रूप लेकर आएगा और भरमाएगा लोगों को। जैसे जैसे उसका अंत नजदीक आ रहा है, उसका कैरेक्टर और डेंजरस होता जा रहा है। वो नई नई तरकीबें लाएगा। जब किसी इंसान को पता है ना कि अब मेरी मौत नजदीक है, अब मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो डेस्परेट हो जाता है, कहता है कि अब तो कुछ भी करो, डू और डाई, इनको पकड़ लो, एक बार ये हाथ से निकल गए तो खत्म। तो इसीलिए वो तो पूरी कोशिश करेगा, पर हमें प्रभु के वचन को पकड़ के रखना है। ये वो जल है जिससे शैतान बार बार यहाँ पर मैल लगाएगा, बार बार यहाँ गंद डालेगा, मैं बार बार वचन से साफ कर लूंगा, तो मेरी तो धुलाई 24 घंटे हो रही है ना। इसलिए प्रभु अगर अभी आ जाए तो मेरे को धुली हुई कंडीशन में पाएगा, फिर मुझे मरने का डर नहीं है, फिर मुझे शैतान का भी डर नहीं है। तो इसलिए अगर मैं वचन के जल से, बाय द वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अगर मैं गुसल करता हूँ या नहाता हूँ डेली वचन से, हर समय वचन को पकड़े रहना है, कभी नहीं छोड़ना। ये वचन ही परमेश्वर है, वचन पकड़े रहे मतलब परमेश्वर को पकड़ रहे हैं, और यही वचन देहधारी हुआ, यही प्रभु यीशु मसीह बना। ये सारी चीजें एक ही हैं। तो इसलिए अगर हम इन चीजों को पकड़ के रखें और उस वचन, इसी वचन से हम, ये वचन ही वो बीज है जिसके द्वारा जब हम पैदा होते हैं, और ये वचन जो है नाश होने वाला है, नाशवान नहीं है, नाश होने वाला है। और जो इस वचन से पकड़ रहेगा, तभी यूहन्ना 3:16 में बोला, जो यीशु मसीह में विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है। पहला यूहन्ना 5:10, 11, 12, 13वीं आयत में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। बेटा जो है वो परमेश्वर की टेस्टिमनी है। जो बेटे को नहीं मानता वो परमेश्वर की टेस्टिमनी को नहीं मानता। और जो पिता और पुत्र का इनकार करता है उसके अंदर एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है। ये भी वहां लिखा पहला यूहन्ना 2 अध्याय के अंदर। तो पिता और पुत्र को ये नहीं कह रहा कि ये दो इंसान नहीं मानता, वो ये नहीं कह रहा। जो पिता और पुत्र के रिश्ते को नहीं, पिता कौन है? प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। पुत्र क्या है? जो उससे जन्मा है, ये जो आत्मा से जन्मा है। इसलिए रोमियो 8 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। तो मैं और आप भी अगर पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं तभी हमारा नया जन्म होता है। नहीं तो हम अपने दादे परदादे का जो गुनाह है वही लिए फिरते रहेंगे, हमारी औलाद भी वही लिए फिरते रहेगी। हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो। तो ये एक तरीके से हम सोचें बहुत शॉर्ट में उद्धार का, ये परमेश्वर की रीति का सारांश है। अगर हम इतना भी कर पाएं अपने जीवन में, बहुत अच्छे काम चाहे हमसे ना हो, जब हम इतना कर लेंगे तो काम भी हमारे अच्छे हो जाएंगे अपने आप। आमीन। जब हमारी नेचर चेंज हो जाएगी तो हमारे काम भी ठीक हो जाएंगे। और अगर हम ये सोचें कि उसके पहले हमारे काम अच्छे हो जाएं तो वो परमेश्वर के आगे तो वो कूड़ा भी नहीं है हमारे काम। परमेश्वर कहता है तुम अच्छे काम तो कर ही नहीं सकते। करोगे कैसे जब तुम्हारे अंदर नेचर ही गलत है? तो तुम्हारा उद्धार जो है वो अनुग्रह से हुआ है, विश्वास करने के द्वारा, और तब तुम्हारे काम चेंज होंगे। और वो काम पवित्र आत्मा के फल लगेंगे, जो गलतियों 5:22 में लिखा है, जो 7 फ्रूट्स हैं पवित्र आत्मा के, होली स्पिरिट के, वो हमारे जीवन से दिखाई देंगे। तो परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। और सिर्फ हमको हमारी क्या ड्यूटी है? एक तो अगर हमको जहाँ पर भी परमेश्वर के सच्चे वचन की संगति मिलती है, हमें उस संगति में बने रहना है।
क्योंकि जब तक हम संगति में बने रहे, चाहे हम 2-4 ही हों, परमेश्वर हमारे बीच में, उसने कहा जब 2-3 भी तुम मेरे नाम में इकट्ठे होगे, जहाँ हमारे पास बड़ी संगति पॉसिबल नहीं, तो जो पॉसिबल है परमेश्वर जानता है ना, कि जी जो परमेश्वर हमारी लिमिटेशंस को जानता है, हमारी मजबूरियों को जानता है, पर वो जानता है कि जो तुम्हें दिया है कम से कम वो तो खा लो, जो तुम्हारी प्लेट में वो तो खा लो, दूसरे की तरफ बाद में देखना। तो परमेश्वर हमसे हर एक से इंडिविजुअली डील करता है। परमेश्वर को पता है हम किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में, क्या मजबूरियां, क्या लिमिटेशन, पर हमें संगति नहीं छोड़नी, क्योंकि संगति में रहने का मतलब ये है, जैसे अंगीठी में जब कोयले जलते हैं ना, जब तक वो साथ में मिले रहते हैं तो उनकी तपिश अच्छी होती है, और जब वो अलग अलग पड़ जाते हैं कि मैं घर में बाइबल पढ़ लूँगा जी, मैं तो घर में प्रार्थना कर लूँगा, नहीं, जैसे भी मुझे, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, परमेश्वर को ये बात अच्छी लग रही है कि तुम चाहे 2-4 ही हो, पर कम से कम बैठे तो हो, क्योंकि तुम करीब हो, मिल सकते हो, चाहे हफ्ते में 1 बार ही मिल सकते हो, चाहे 2 बार ही मिल सकते हो, पर कोशिश तो करो। अब हम ये कहें जी नहीं, तो हमको तो वहाँ जाना पड़ेगा, मैनचेस्टर सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ पर चर्च लगता है बहुत बड़ा, और वहाँ पता चला हम जा ही नहीं पा रहे हैं, हाँ जी, तो परमेश्वर कहेगा जब तुम्हारे को मैंने दिया है, तुम्हारे सामने रखा है, उसको तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और तुम वहाँ जाने के लिए तो और बड़ा बहाना बन जाएगा, जब यहाँ के लिए बहाना बन गया था। इसीलिए, और दूसरी चीज़ है कि हम जो इंसान शिक्षा दे रहा है उसको भी बहुत खबरदार रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पर्सनैलिटी की शिक्षा से लोगों को वशीभूत कर रहा है या उनको इम्प्रेस कर रहा है। परमेश्वर जो है वो पर्सनैलिटीज़ का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मशहूर लोगों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने अपने आप को बड़ी सादगी से एक चरनी के अंदर एक बच्चे के रूप में शरीर दिया। उसने, लोग तो जो विद्वान लोग थे वो तो जाके उसको हेरोदेस के महल में ढूंढ रहे थे कि राजा पैदा होना तो ये महल में ही पैदा होगा, पर परमेश्वर ने महल नहीं चुना, उसने एक चरनी चुनी जहाँ मवेशी लोग चारा खाते हैं। वो अपनी इंसानी अकल से वहाँ पहुँच गए, इंसानी अकल के चक्कर में इतने बच्चे मरवा दिए उन्होंने। तो परमेश्वर ने तो अपने बच्चे को बचाना था ना, उसने उनको बोला तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ। तो परमेश्वर हमेशा सिंप्लिसिटी और सादगी के अंदर पाया जाता है। जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शो होते हैं, बहुत बड़े बड़े बैंड बज रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ये काम हो रहा होते हैं, अच्छा फर्नीचर होता है और ये सारा कुछ होता है, लोग कहते हैं 10,000 की 20,000 की कांग्रीगेशन। खुदावन 20,000 की कांग्रीगेशन का खुदा नहीं है, खुदावन एक सोल का भी खुदा है। आमीन। अगर एक आत्मा बचती है तो खुदावन के लिए, खुदा के लिए पूरे हेवंस के अंदर एंजल्स उस चीज़ की खुशी मनाते हैं। तो इसीलिए, और फिर चीज़ ये है कि हमें 10,000 की कांग्रीगेशन से क्या लेना। मैं तो खुद एक कांग्रीगेशन अकेला भी, मेरे साथ ना मेरा बाप जाएगा ना मेरी माँ जाएगी, वो उनका हिसाब अलग है, ना मेरी औलाद जाएगी, मैं चला जाऊं तो वो बहुत बड़ी बात है। और मैंने अगर अपनी ड्यूटीज़ कर दी हैं जो कि मुझे संसार में परमेश्वर ने दी हैं, एज ए पेरेंट या एज ए मदर या फादर या भाई बहन, वो मुझे कर देनी है। अब वो संभले कि ना संभले वो इंडिविजुअली जिम्मेदार है। और अगर कोई बच्चे फन में चला जाता है तो उसका इंसाफ तो परमेश्वर खुद ही करेगा, उसको इंसाफ की क्या ज़रूरत, वो तो अनजाने में चला गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और परमेश्वर जब हमें उन चीज़ों से निकाल के लाया जहाँ हम गलत शिक्षा में थे, जहाँ 3 पर्सनैलिटी और 3 परमेश्वर की शिक्षा दी जा रही, कम से कम हम वहाँ तो नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हम, परमेश्वर कहता है एक बार जब तुमने सच को चख लिया, उसके बाद अगर तुम वापस चले जाओ तो तुम्हारी वो हालत, तो फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो खून बहाया, जो हमारे लिए उसने सेक्रीफाइस किया, उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो प्रभु हम सबको आशीष दे, हम सबको ऐसी तौफीक दे और वो बुद्धि दे जो वही दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। और हमारे मनों को वचन की ओर लगाए रखे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, उसके नाम की महिमा। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस बंदगी की, शुक्रगुजारी की, शाम की सभा की समाप्ति की क्लोजिंग प्रेयर में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, फिर से हम प्रभु जी अपने सरों को झुकाते हुए धन्यवाद के साथ आपके सामने बैठे हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप जीते परमेश्वर हैं और हमेशा अपने
प्रभु जी अपने बच्चों के साथ होते हैं, और आज भी प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। जैसा कि आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो तुम्हें ज़रूर देता है। और पिता परमेश्वर, हमने प्रार्थना में मांगा था पिता, हे पिता, हमारी रूह का, हमारी सोल का पिता परमेश्वर खाना दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम उसी से जिंदा रहते हैं। हम आपके मुंह के से निकले हुए वचन से जिंदा रहते हैं। हमसे बात करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चों को आपका वचन मिलता है, वचन का प्रकाशन मिलता है, वो वाला प्रकाशन पिता परमेश्वर, जब चेलों ने कहा कि हे प्रभु तू दृष्टांतों में बातें क्यों करता है, तो आपने कहा ये भेद की बातें इन लोगों के लिए हैं जो भीड़, संसारिक खाना, मछली, रोटी के लिए मेरे पीछे लगी है, चमत्कारों के लिए, पर तुम्हारे लिए दृष्टांत नहीं है। इन दृष्टांतों का जो प्रकाशन है मैंने तुम्हारे लिए रखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। और आपने कहा है छोटे झुंड, आपने बड़े झुंडों को ठुकरा कर कहा है छोटे झुंड तू ना डर। पिता को यही अच्छा लगा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हें दिया जाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर हमसे बात करने के लिए पिता। और जब आपका वचन हमारी रूह में जाता है तो हमें ताकत मिलती है, और प्रभु परमेश्वर हम आनंदित होते हैं। पिता परमेश्वर हमें ये स्फूर्ति देता है, रिफ्रेशमेंट देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, जैसा आपसे मांगा आपने दिया पिता परमेश्वर। और होने देना पिता, ये सड़क के ऊपर ना गिरा हो, पथरीली ज़मीन पे ना गिरा हो, पथरीले हृदय पे ना गिरा हो, ना सड़क के किनारे भी ना गिरा हो, कि संसार की गलत शिक्षाएं वो कांटों की तरह प्रभु जी आए और इसे बढ़ने ना दें। हे पिता, ये आपका वचन जो बीज है, जो नाशवान नहीं अविनाशी है, और इस बीज, वचन के बीज का जो जिस जल से हम अभी शुद्ध हुए हैं पिता, ये हमारे अच्छे हृदयों में पड़ा हो। आप प्रभु जी आप ही करें, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हारा पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल भर दूंगा। और आपने कहा जो अच्छी ज़मीन पर बीज गिरा, जो बड़ा, वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं और उस पर ईमान लाकर उस पर चलते हैं। पिता परमेश्वर, होने देना ये बीज अच्छे हृदय पे गिरा हो और हृदय की गहराई में बसा हो, क्योंकि पिता परमेश्वर वचन में लिखा है, चेलों ने, पतरस ने, पौलुस ने जगह जगह प्रचार किया, लेकिन जो आपके चुने हुए थे वो वचन सुनकर घर में जाकर पवित्र शास्त्र खोलते थे, और जो प्रचार सुना था उसको आपके पवित्र शास्त्र से मिलाते थे कि ये बातें जो उन्होंने सुनी है वचन से मेल खाती हैं कि नहीं खाती। और प्रभु जी जब उन्होंने देखा कि मेल खाती हैं तो उन्होंने विश्वास किया कि वो चेले आपके भेजे हुए हैं पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर कि प्रभु हर एक बच्चा प्रभु जी वचन से मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन ही सबसे ऊपर है पिता परमेश्वर। हर एक पास्टर का पिता परमेश्वर, दुनिया के जितना बड़ी मर्जी कोई नबी हो बना, प्रेरित हो पिता परमेश्वर, सबका न्याय पिता परमेश्वर आपने करना है पिता परमेश्वर। दया रहम पिता परमेश्वर, उस दिन सब आपके सामने खड़े होंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपसे बड़ा कोई नहीं पिता परमेश्वर। दया रहम कृपा करें प्रभु, हम पवित्र शास्त्र से पढ़ें पिता परमेश्वर, और हर एक शिक्षा पर कान ना लगाएं, उसको मिलाएं कि आपकी ओर से है कि नहीं पिता परमेश्वर। दया रहम कृपा करे पिता परमेश्वर। हमारा जिस्म चाहे प्रभु जी कमजोर रह जाए, लेकिन हमारा आत्मा ना मरे पिता परमेश्वर, और प्रभु हमारे प्राण ना मर जाए पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि हम संसारिक चंगाई से खुश होते रहें, हमारा रूह मर जाए पिता, और जिस दिन तू आए
और हम कहें हम तो यीशु तेरे थे और तू कहे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हम कहें तेरे नाम से हम तो चंगाई भी देखी, भूत निकलते देखे, बड़ी बड़ी मीटिंगें देखी, और तू कहे हे दुर्चारी लोगों में से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ओ प्रभु, ये शब्द प्रभु जी हम नहीं सुनना चाहते पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु जब तू आए और तू कहे हे मेरे बच्चों तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार है पिता परमेश्वर, दया हम कृपा करें। प्रभु जी हमसे नहीं हो सकता, आपसे हो सकता है पिता परमेश्वर। आपने कहा, चेलों ने कहा मनुष्य के लिए कठिन है, आपने कहा परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, क्योंकि ना पतरस ने किसी का मन बदला, ना पौलुस ने मन बदला, उन्होंने सिर्फ तेरा वचन दिया। प्रभु जी मन आपने बदला पिता परमेश्वर। आपने लिखा है जो पहले से चुने हुए थे, जो ठहराए हुए थे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और आपने ही पौलुस को कहा उस नगर में जा, मेरे बहुत सारे लोग हैं वहां। और प्रभु जिस नगर में नहीं थे प्रभु आपने फिर भी भेजा कि तू उस नगर में जा। आप जानते थे उस नगर में आपके लोग नहीं हैं, पौलुस के साथ बुरा बर्ताव होगा, लेकिन आपने भेजा। जब उन्होंने आपके वचन की कदर नहीं की प्रभु पिता, पौलुस ने पांव झाड़े और कहा कि मैं निर्दोष हूं, तुम्हारा खून तुम्हारे सर पर हो। क्योंकि आप वचन सबको देते हैं ताकि न्याय वाले दिन कोई इंसान मुकर ना पाए कि आपका वचन नहीं उनके पास पहुंचा पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिता। हम पर अनुग्रह दया कृपा हम पर सब परिवारों पर बना रहे, और सिस्टर सोनिया पर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। इन दिनों में, इन महीनों में, इन हालातों में, और प्रभु जी खाने पीने में, डाइट में पिता, और रूह में पिता परमेश्वर, हर एक बुराई, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक पिता परमेश्वर, अंधकार की ताकतें, लूसीफर, सैटनिक, सबको आपके नाम से प्रभु जी काटते हैं, हुक्म देते हैं, दफा दूर रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम बहुत जल्द आपका दिया हुआ फल और आशीष देखे पिता परमेश्वर। पूरे परिवार पर अनुग्रह, हम सब पर आपका अनुग्रह, छोटा सा झुंड प्रभु आप यहाँ का प्रभु जी आप में बना रहे, जैसा लिखा है कि मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थनाएं सुन ली है पिता परमेश्वर, और हर की जरूरत प्रभु परमेश्वर पूरी की है। हम प्रभु जी अपनी सारी जरूरतें इस देश में आगे आने वाले समय में, चाहे कन्वेंस हो प्रभु जी, डॉक्यूमेंटेशन हो, कागजात हो प्रभु, लाइसेंस हो पिता परमेश्वर, हर चीजों को आपके हाथों में देते हैं। क्योंकि आपने कहा अब्राहम को आशीष दी थी नए देश में, आपने वादा किया तेरी संतान को भी मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ मांगा हमने पा लिया है अपने और सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। हालेलुया। जय मसीह जी। प्रभु आशीष दे सबको। मसीह जी, जय मसीह सबको। मसीह जी, जय मसीह जी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तारे प्रभु जी।